study another problem based on dynamic programming, which is called as matrix chain multiplication, that is MCM, or sometimes it is also called as chain matrix multiplication. We already know the process of multiplication. If we have to multiply two matrices, okay, so if we are supposed to multiply two matrices, then there is a rule. We cannot multiply any two matrices. The only thing is, suppose M1 is a matrix with a dimension of 3 by 2, that is 3 rows and 2 columns. M2 is another matrix with dimension 2 by 4, that means it has 2 rows and 4 columns. The multiplication between these two matrices is possible. Why? Because the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. Okay, so we can multiply two matrices only if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. That means these two values should be same. Only then we can it is possible to multiply two matrices. Okay, and suppose this is the resultant matrix. Okay, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा. सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स? सो द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 3 by 4. So it will have 3 rows and 4 columns. Okay, so this is how we carry on the multiplication process. Now the point is, see, how many elements are there in the resultant matrix? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 4s are 12 elements are there. Right? In this resultant matrix, there are 12 elements. Now, if we are following the traditional matrix multiplication process or method, then how do we calculate the individual elements? Suppose I wish to calculate this first element. Okay, so suppose I write down I give numbers to the rows and columns, and suppose I am trying to find out the value which will be there in this entry, that is in the first row and the first column. How do I calculate it traditionally? Okay, I calculate like this. I multiply the first row, I take the first row and the first column. That means मैं ये वाले एलिमेंट को I multiply this by this plus this by this. ठीक है, यानी कि सिर्फ ये सिंगल एलिमेंट को रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ये एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेशन या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस दिस इनटू दिस. ठीक है, यानी कि एक सिंगल कैलकुलेशन करने के लिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितने कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ी या कितने मल्टीप्लिकेशंस की ज़रूरत पड़ी. मैं मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज एडिशन के कंपैरिजन में मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रोसेस होती है दैट इज़ मोर कॉस्टली. ओके, तो to find out this particular element, I need to perform how many multiplication? 2 multiplication. Okay, 2 multiplications are to be performed if I want to calculate this single element. The same will be applied, or the same rule will be applied for the remaining elements also. यानी कि resultant matrix के बाकी elements को calculate करने के लिए भी आपको 2 multiplications करनी पड़ेंगी. यानी हर एक element को resultant matrix के हर एक element को calculate करने के लिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से हर एक एलिमेंट के लिए आपको 2 मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ रही है. तो फिर ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का कॉस्ट क्या हुआ? व्हाट विल बी द कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस इज कॉल्ड एज कॉस्ट. इस एग्जाम्पल के हिसाब से व्हाट इज द कॉस्ट? ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ रही है? देखिए, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? सबसे पहले तो एलिमेंट्स कितने हैं? 12 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, देयर आर 12 एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए, हर एक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कितने मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ रहे हैं? 2 मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ रहे हैं. तो एक एलिमेंट के लिए 2 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, तो 12 एलिमेंट के लिए कितने मल्टीप्लिकेशंस की जरूरत पड़ेगी? 24. ओके, यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का कॉस्ट कितना हुआ? 24 मल्टीप्लिकेशन ऑल टुगेदर. पूरे मिला के 24 मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े. इस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं. अब इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं, यानी इतने लंबे वे से कॉस्ट फाइंड आउट ना करके वी कैन डायरेक्टली से यहाँ से ही हम देख सकते हैं. सी 3 by 2 का है पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है 2 by 4 का. 2 क्योंकि कॉमन होना ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ के रोज जो है वो सेम होना ज़रूरी है. तो इसका मतलब ये भी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 कॉस्ट इज इक्वल टू
3 into 2 which is common into 4. So 3 2s are 6, 6 4s are 22. Okay, so इस तरह से भी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स की डायमेंशंस अगर आपको पता है तो आप इस तरह से भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हमें कम से कम कॉस्ट में कैलकुलेशंस या कम से कम मल्टीप्लिकेशंस की मदद से हमारे मैट्राइसेस मल्टीप्लाई हो जाए। अब जब दो मैट्राइसेस है तब तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हम कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इतना कॉस्ट तो आपको आएगा ही, ठीक है। आप m1 इंटू m2 कीजिए या m2 इंटू m1 कीजिए, यू विल गेट द सेम कॉस्ट, ओके। बट m2 इंटू m1 तो खैर यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि m2 इंटू m4 होने के लिए 2/4 है और यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैच नहीं होगी। तो पॉइंट इज कि अगर इससे ज्यादा मैट्राइसेस है, ठीक है, 2 मैट्राइसेस है, देन देयर इज नो स्कोप फॉर रिडक्शन इन कॉस्ट। बट इफ देयर इज अ चेन ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का चेन है यानी कि 3 या 3 से ज्यादा मैट्राइसेस है हमारे पास, और हमें जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 या 3 से ज़्यादा मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उनका हम कॉस्ट क्या रिड्यूस कर सकते हैं? तो हाँ, हम उनका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम कुछ एसोसिएशन रूल्स लगाए, ठीक है। हम प्रायोरिटीज अगर सेट करें तो पॉसिबल है कि हम कॉस्ट को कुछ हद तक रिड्यूस करें। तो लेट्स सी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मैट्राइसेस लिए हैं, m1 with dimension 2/5, m2 with dimension 5/10 and m3 with dimension 10/4। अगेन चेक कर लेते हैं क्या तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि पहले वो चेक करना जरूरी है। देखते हैं m1 इंटू m2 2/5 5/10 ये कॉमन है, दैट मीन्स हाँ यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब देखते हैं m2 इंटू m3 5 इंटू 10 10 इंटू 4, तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ m3। So again, this can be multiplied by this, यानी कि multiplication is possible for these 3 matrices। अब कौन कौन से वेज है जिनको यूज करके हम ये 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सके। Now, what do I mean by ways? See here, अगर आप 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप एट अ टाइम तो 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। एट अ टाइम वी कैन मल्टीप्लाई एनी 2 मैट्रिसेस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए। वन पॉसिबिलिटी इज, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि मैं m1 और m2 इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और फिर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको मैं m3 से मल्टीप्लाई करूँ। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी इज, दिस इज सेकेंड पॉसिबिलिटी, I will multiply m2 and m3 first, okay, and then I will multiply m1 with the result of m2 into m3. So this is the second possibility, यानी मैं इन दोनों को ग्रुप करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या मैं पहले को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ जो इन दोनों का रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उससे कर सकती हूँ। इसको हम एसोसिएशन रूल्स भी बोलते हैं। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है, इट इज एसोसिएटिव, यानी आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ऐसे इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए, तो फाइनल आंसर रिमेन्स द सेम, फाइनल आंसर सेम रहेगा। लेकिन दोनों तरीके से करने में एक फर्क रहेगा, हालांकि फाइनल मैट्रिक्स विल बी द सेम बट देयर विल बी डिफरेंस इन द कॉस्ट। ओके, यू विल सी कि एक पर्टिकुलर मेथड में आपको कम कॉस्ट में आपके कैलकुलेशंस हो गए एज कम्पेयर टू दी अदर। ओके, सो लेट्स सी कि कैसे होगा, यहाँ पे कॉस्ट का डिफरेंस कैसे आता है, ये जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे कि m1 इंटू m2 मैं इसके डायमेंशंस लिख देती हूँ, ये 2/5 का है और ये 5/10 का है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, मैंने इनको एसोसिएट किया है, मैंने इनको ग्रुप किया है, तो दैट मीन्स मैं इनको पहले मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो 2/5 है, 5/10 है, तो इनका कॉस्ट कितना होगा, इसका कॉस्ट कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 2 इंटू 5 इंटू 10, 2 इंटू 5 इंटू 10 विच कम्स आउट टू बी 100, ठीक है। ये कॉस्ट मिला आपको, ये दो को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट जो है, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने का जो कॉस्ट है वो कितना मिला आपको, 100 मिला, ठीक है। m1 बाय m2 को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये 2/5 का है, ये 5/10 का है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी इनको मल्टीप्लाई करने पर वो कितने बाय कितने की होगी, वो 2/10 की होगी, 2/10 की होगी। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है m3 से, और m3 का डायमेंशन क्या है, 10/4।
और M2 को मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें मैट्रिक्स कितना मिला, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला विद डायमेंशन 2/10, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना था, 100, ठीक है। जिसको मैं फिलहाल C1 करके लिखते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने इसको C1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक और पेयर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2/10 का है, ये 10/4 का है। अगेन ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ के नंबर ऑफ रोज सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपका कॉस्ट होगा वो कितना होगा, ओके, 2, 10, 4, यानी कि 2 × 10 × 4। तो ऑलरेडी आपको इन दोनों मैट्रिक्स से कॉस्ट कितना मिला था, 100, और इससे कॉस्ट कितना मिल रहा है, 2 × 10 20, 20 × 4 इज 80। तो 100 + 80 यानी कि 180 टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करने पे हमें टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है। चेक करते हैं कि इस तरह से ग्रुपिंग अगर हम करते हैं, इस तरह से अगर हम एसोसिएट करते हैं मैट्रिसेस को, तो टोटल कॉस्ट कितना जाता है। तो लेट्स डू इट। ये 2/5 का है, ठीक है, ये 5/10 एंड 10/4, ओके। तो पहले तो इन दोनों को करना है, तो इन दोनों का कॉस्ट कितना आता है, मैं अभी सिर्फ कॉस्ट लिख रही हूँ। इनका कॉस्ट कितना होगा, 5 × 10 × 4, ठीक है, 5 × 10 × 4, 50 × 4 इज 200, ठीक है। अब इनसे जो मैट्रिक्स बनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनी वो कितने बाय कितने की बनी, इनसे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 5/4 का होगा, ठीक है। कितने का होगा, 5/4 का होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, M1 को मल्टीप्लाई करना है 5/4 वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। तो M1 कितने डायमेंशन का है, 2/5, और ये कितने डायमेंशन का है, 5/4, ठीक है। 5 और 5 कॉमन है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगा, और इससे जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना मिलेगा, 2 × 5 × 4, 2 × 5 × 4। तो 2 × 5 मीन्स 10, 10 4 are 40, यानी 240। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है, 240 मिल रहा है। तो इस तरह से ग्रुपिंग अगर हम करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, या अभी मैं वो वर्ड यूज करूंगी, करेक्ट वर्ड यूज करूंगी, विच इज कॉल्ड एज पैरेंथेसाइजेशन। So instead of grouping and association, we are going to use the term parenthesization. Parenthesis, brackets are also called as parenthesis. So कौन सा पैरेंथेसाइजेशन करने पे आपको कम टोटल कॉस्ट मिला, ठीक है, कम से कम मल्टीप्लिकेशन में आपको आंसर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको 180 का टोटल कॉस्ट मिल रहा है, यहाँ पे 240 का टोटल कॉस्ट मिल रहा है, यानी कौन सी ग्रुपिंग, कौन सा पैरेंथेसाइजेशन आपको कम कॉस्ट में आपको आंसर दे दे रहा है, ये वाला पैरेंथेसाइजेशन इज ऑब्वियसली बेटर, ओके। सो वी विल मूव विद दिस, ओके। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल अबाउट दिस। Here we will be given a chain of matrices, एक चेन ऑफ मैट्रिक्स हमको गिवन रहेंगी, 3, 4 या 5 मैट्रिक्स गिवन हो सकते हैं। हमारा एम है कि हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट पैरेंथेसाइजेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, किन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये जो पैरेंथेसाइजेशन है, बिकॉज पैरेंथेसिस डालने से या ब्रैकेट्स डालने से ऑर्डर सेट करते हैं, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए, वो ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए, वो करेक्ट ऑर्डरिंग जो है, जो हमें लीस्ट कॉस्ट देगा, वो फाइंड आउट करना ही हमारा टारगेट है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ये कैसे अचीव हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। So we'll solve a problem based on matrix chain multiplication. Okay. So when such type of problems are given to us, we'll have in the question we'll be given an array of numbers. ठीक है, तो सिर्फ एक array of numbers given रहेगा। अब ये array of numbers से आपको predict करना है कि मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, या जो चेन ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो कौन सी है, कितनी है, और उनकी इंडिविजुअल की डायमेंशन कैसी है, यही वैल्यूज से आपको आप पता कर सकते हो। सो इन द क्वेश्चन ओनली an array of values will be given, and you are supposed to find out the optimal multiplication cost, ठीक है, या optimal parenthesization which will give you the minimum cost to get the result. Okay, so that is what is expected. Now suppose in the question these are the this is the array of numbers which is given, then let's count the number of elements in the array, 5 4 6 2 7. So total we have 5 elements in this array. Now these 5
if there are 5 elements in the array, then you can get to know that there are 4 matrices. यानी कि array में अगर n number of elements है तो आपको समझना है कि n-1 matrices का आपको multiplication करना, ठीक है. तो I know that because there are 5 elements, I know that there are 4 matrices, so I will name it as m1, m2, m3, m4. ठीक है. अब ये 4 matrices है ये तो पता चल गया, लेकिन individual matrix की dimensions कैसी होगी, let's try to figure it out. Okay. The first two values है 5, 4. This will be the dimension of the first matrix 5 by 4. तो m1 का dimension है 5 by 4. ठीक है. तो क्योंकि 5 by 4 है तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है m2 उसका डायमेंशन होगा 4 by 6. ओके, सो m2 का डायमेंशन इज 4 by 6. देन m3 का डायमेंशन विल बी 6 by 2 एंड m4 का डायमेंशन विल बी 2 by 7. ठीक है. तो इस तरह से हम ये सारे डायमेंशंस को लिख लेंगे. ठीक है, मैट्रिसेस और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डायमेंशंस है, ये 4 मैट्रिसेस है जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि कौन से पैरेंथेसाइजेशन से हमें कम से कम कॉस्ट मिलता है. ठीक है. अब एक और चीज़, सारे डायमेंशंस लिखने के बाद, ठीक है, ये जो वैल्यूज गिवन है 5, 4, 6, 2, 7, ये 5, 4, 6, 2, 7 आर नथिंग बट PIs. चलिए ये क्या है, PIs है. यानी कि जो पहला नंबर है इस एरे का, जो पहला नंबर है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, P0. ओके, नेक्स्ट इज P1, देन P2, P3, P4. ओके, तो ये 5, 4, 6, 2, 7 जो है, दीज आर सम PIs स्टार्टिंग, वी स्टार्ट फ्रॉम P0, P1, P2, P3, P4. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग कैलकुलेशन, यानी हम ये जब एल्गोरिदम लगाएंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी वाला जो एल्गोरिदम लगाएंगे चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमें 2 मैट्रिक्स क्रिएट करना है. ठीक है. पहला जो मैट्रिक्स है वी कॉल इट एज कॉस्ट मैट्रिक्स. ठीक है. यहाँ पे हम वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने की ज़रूरत है. ठीक है. तो कॉस्ट मैट्रिक्स में हम वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और उसी के साथ साथ हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम एस मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज के मैट्रिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायमेंशन कम है, एक सेल कम है, वो हमें यूज़ करना है. ठीक है. तो मैं पहले आपको बता देती हूँ ये कैसे बनाना है. सी ये 4 by 4 का है. ठीक है. टोटल मैट्रिसेस कितने हैं, 4 मैट्रिसेस है. इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 रोज बनाएंगे. ठीक है. और 4 कॉलम्स बनाएंगे. एक्चुअली आप देखोगे अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. हमने सिर्फ डायगोनल अपर डायगोनल को यूज़ किया है. ठीक है. अगर आप इस तरह से भी मैट्रिक्स बनाते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो हम सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं. ये मैट्रिक्स को मैंने रोटेट करके इस तरह से लिखा है. द अरेंजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी अरेंज कर सकते हो. ओके. लेकिन जो एस मैट्रिक्स होगी उसमें हम ये वाला एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ की फर्स्ट एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ की 4th एंट्री नहीं लेंगे. सो यहाँ पे हम 2, 3, 4 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे हम 1, 2, 3 पे स्टॉप हो जाएंगे. ओके. तो यहाँ से ये स्किप करना है, ये स्किप करना है. तो 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3 इस तरह से आपको ये दोनों मैट्रिसेस जो है क्रिएट करना है. अब ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं ये एंट्रीज को फिल करने के लिए. ठीक है. तो ये क्या फॉर्मूला है एक बार देख लेते हैं. सी ऑफ आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई और जे की वैल्यू अगर सेम होती है. ठीक है. अब आई क्या है, दिस इज आई एंड दिस इज जे. ओके. सो रिमेंबर दिस, ये आई है और ये जे है. ठीक है. आई है. कोई भी एंट्री में सेल में अगर आई और जे की वैल्यू सेम है तो फिर उसकी वैल्यू, उस एंट्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. ठीक है. अगर आई और जे की वैल्यूज मैच होती है, ठीक है, तो फिर वैल्यू भी गेट इज 0. यहाँ कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं. लेकिन अगर डिफरेंट है, आई और जे डिफरेंट है इस मैट्रिक्स में, तो फिर हमें कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है. मिनिमम ऑफ आई गोइंग फ्रॉम आई लेस देन इक्वल टू के बट स्ट्रिक्टली लेस देन जे, then we will have to calculate this C of ik plus C of k plus 1j plus pi minus 1 pk pj. ये तो CIK और CK plus 1j जो है वो तो सेल की ही एंट्रीज है, उसकी वैल्यूज हमें वहाँ से मिल जाएंगी. और ये pi minus 1 pk pj जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा. ठीक है. वो कैसे मिलेगा, विल सी इन द कैलकुलेशन. और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो टू कैलकुलेट एस मैट्रिक्स. अब एस मैट्रिक्स के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है. एस मैट्रिक्स की एंट्रीज को फिल करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. जैसे जैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे आई विल टेल यू कि इसकी एंट्रीज कैसे फिल होनी है.
एक बार ध्यान में रखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली हमें फिल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पूरा कंप्लीट करेंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में ही साइमल्टेनियसली हम दोनों की एंट्रीज को फिल करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो मैट्रिक्स है, कॉस्ट मैट्रिक्स है, उसको हम ऐसे बॉटम अप में जाएंगे। एंड विल स्टार्ट विद दीज एंट्रीज फर्स्ट। हम पहले ये एंट्रीज को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये और फिर ये, और आखिरी में ये वाला जो एंट्री होगा, ठीक है, दैट विल बी योर फाइनल टोटल कॉस्ट, मिनिमम टोटल कॉस्ट या ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। So we'll start the calculations now. Okay, we'll start filling the entries. So as I told you, we'll first calculate the bottom cells first, and then we will rise to the cells that are present upwards. So let's calculate these entries. Now what are the dimensions? What is row number and column number of this? See, this cell, it belongs to first row, first column. I means row and J means column. So in this particular entry, what are the values of I and J? Okay, I is 1, okay, I is 1, J is also 1. Okay, so that means we have to calculate the cost of entry C of 1, 1. Similarly, if I see this one entry, this belongs to second row, second column. We also have to find out the cost of C of 2, 2. Similarly, this entry is third row, third column, that is we'll calculate C of 3, 3. And this entry is fourth row, fourth column, that is we'll calculate the entry of C of 4, 4. Now, if you remember the formula that I have written earlier, in that formula we have seen that whenever the value of I and J is same, whenever the value of I and J is same, the value is, we do not have to apply any formula, the answer will be 0. So all these entries are same, okay, and it will be equal to 0. So let's fill up these entries. Now what does these values indicate? कॉस्ट मैट्रिक्स की हर एक एंट्री की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, उसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। द मीनिंग इज, सी मैंने यहाँ लिखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर वन मैट्रिक्स, यानी कि अगर आप M1 मैट्रिक्स को M1 मैट्रिक्स के ही साथ मल्टीप्लाई करो। देखिए हमको टोटल 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, और फिर वो चारों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ऑप्टिमल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब एक ही मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे कि सिर्फ M1 है, तो उसको तो आप किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इट इज़ अ सिंगल मैट्रिक्स, इट नीड नॉट बी मल्टीप्लाइड विद एनी अदर मैट्रिक्स। इसका कॉस्ट कितना होगा, 0 होगा। अगर आप सिर्फ M2 वाले मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना है, 0, बिकॉज आपने एक नए मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। सेम फॉर C3, 3 एंड C4, 4, ओके। तो ये जो एंट्रीज है, ये क्या इंडिकेट करती है, दिस इंडिकेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर वन मैट्रिक्स ओनली। सो इफ देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स, देयर इज नो कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट येट मल्टीप्लाइड अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स तो जरूरत है ना, बट हियर वी आर कंसिडरिंग ओनली वन मैट्रिक्स एट अ टाइम। तो एट अ टाइम एक ही मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो फिर कॉस्ट कितना होगा, 0, ओके। अब हम ये ऊपर के सेल्स को फिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंट्री, ये वाली एंट्री हमें फिल करना है। तो यहाँ आई जे की वैल्यूज क्या है, I is 2 एंड J is 1, ओके। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके, 1 मिनट, आई विल इंटरचेंज दिस वैल्यूज, दिस इज I एंड दिस इज J, इट मेक्स नो डिफरेंस, ओके, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द अपर हाफ ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। सो लेट दिस बी I, ये इसको हम नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं, इसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वाली एंट्री अभी क्या होगी, 1, 2, ओके। हम इस तरह से रीड करेंगे, I को रीड करेंगे यानी रो को रीड करेंगे, फिर J को रीड करेंगे। तो ये एंट्री को फिल करना है, दैट मीन्स मुझे 1, 2 को फिल करना है। तो इसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, लेट्स सी दैट, ओके। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ C of 1, 2। अब I और J की वैल्यूज डिफरेंट है, और जब I, J की वैल्यूज डिफरेंट होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में आपने एक नोटिस किया होगा कि वी हैव टू फाइंड मिनिमम I लेस देन इक्वल टू K लेस देन J, ठीक है। यानी कि हमको हर एक K की वैल्यू यूज करनी है I और J के बीच में, लेकिन वो J से स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए, लेकिन I से इक्वल हो सकती है। तो अगर मेरी K की वैल्यू, देखिए I क्या था हमारा 1, ठीक है, और J क्या था हमारा 2, तो K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, K की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, या तो फिर 2 से लेस हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि K की वैल्यू एक ही वैल्यू हो सकती है, विच इज 1, है ना।
के की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में लानी है और वो 2 नहीं हो सकती है, दैट मीन्स के की वैल्यू क्या बचेगी, 1 ही बचेगी। दैट मीन्स के की वैल्यू क्या है, 1 ही। ओके, अब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं, ये वैल्यूज हम लिखते हैं। सी ऑफ आई के यानी क्या होगा, आई क्या है 1, के इज ऑल्सो 1, प्लस सी ऑफ के प्लस 1 जे, सी ऑफ के प्लस 1 यानी क्या होगा 2, और जे कितना है 2, प्लस पी आई माइनस 1 पी के पी जे। ओके, अब ये पी आई माइनस 1 पी के पी जे क्या है, लेट्स सी दैट। व्हाट इज पी आई माइनस 1, पी आई माइनस 1 मीन्स पी जीरो, क्योंकि आई कितना है 1 है, पी जीरो इंटू पी वन इंटू पी टू, और पी के क्या है 1 है, और पी जे कितना है 2 है, यानी 3। सो मैं यहाँ पे डॉट लिख रही हूँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो C11 प्लस C22 प्लस P0 इंटू P1 इंटू P2, ये कैलकुलेशन हमको करना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज C11, ठीक है, C11 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, दिस इज 0, ठीक है, हमको ऑलरेडी मिल गया था। C22 क्या है 0, अब ये P0 इंटू P1 इंटू P2 कर लेते हैं। P0 क्या है 5 इंटू P1 इंटू P2, 5 इंटू 4 इंटू 6, यानी कि कितना मिला 5 4 20, 26 120, ठीक है। तो ये हमें कॉस्ट मिला है, यानी मैट्रिक्स 1 को C ऑफ 1 2 यानी मैट्रिक्स 1 को मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई करने पे M1 इंटू N2 करने पे हमें कॉस्ट कितना मिल रहा है 120। सो विल राइट हियर 120। उसी तरह से हम ये भी फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C ऑफ आई के, सी यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो सकती है, के का रेंज क्या है 2 से लेकर 3 तक, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से लेस होना चाहिए। एटलीस्ट के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 2 ही हो सकती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले आई के करना है, यहाँ पे ये आई है और ये जे है। सो वी गेट सी ऑफ 2 2 प्लस सी ऑफ 3 3 प्लस नाउ पी आई माइनस 1, पी आई माइनस 1 यानी P1, ठीक है, आई की वैल्यू 2 है तो पी आई माइनस 1 विल बी P1, पी के इज 2 एंड पी जे इज 3, सो P1 डॉट P2 डॉट P3, ठीक है। कुछ इस तरह से मिला। अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, C22 और C33 ये दोनों 0 थे, ठीक है, और P1 इंटू P2 इंटू P3 यानी ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। सो क्या मिलेगा 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 48, सो 48 इज द आंसर। ओके, सो ये 48 हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। क्यों, ये किसका कैलकुलेशन था, C ऑफ 2 3, ओके, ये 2 3 सेकेंड रो थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लास्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो ये क्या होगा C ऑफ 3 3 प्लस C ऑफ 4 4 प्लस अभी क्या होगा P2 इंटू P3 इंटू P4, ठीक है। पी आई माइनस 1, आई क्या है इस बार 3 है, जे क्या है 4 है, ठीक है। सो पी आई माइनस 1 के क्या होगा, अगर के की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए और वो 4 से लेस होनी चाहिए, ना के की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, तो यहाँ पे के क्या होगा 3 होगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सी ऑफ 3 3 0 है, सी ऑफ 4 4 भी 0 है, P2 इंटू P3 इंटू P4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 6 इंटू 2 इंटू 7, सो द आंसर इज 84, ओके। तो दिस विल राइट इट, ओके। तो हमने ये एंट्रीज को भी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू सी कि ये मैट्रिक्स, ये जो सेल्स है, ये एंट्रीज का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। ऐसा है सर कि हम ये कॉस्ट मैट्रिक्स के साथ साथ एस मैट्रिक्स को भी साइमल्टेनियसली फिल करते रहेंगे, ठीक है। एस मैट्रिक्स में 1 1 2 2 3 3 4 4 वाला सेल हमने इंक्लूड नहीं किया है। एस मैट्रिक्स में एंट्रीज क्या होंगी, देखिए अभी अभी हमने 1 2 वाली एंट्री कॉस्ट मैट्रिक्स में फिल की है, तो एस मैट्रिक्स में भी ये 1 2 वाली एंट्री, 2 3 वाली एंट्री और 3 4 वाली एंट्री, 3 4 वाली एंट्री, ये तीनों एंट्रीज हम साइमल्टेनियसली फिल करेंगे। कैसे, ये एस मैट्रिक्स में जनरली हम कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं, के की वैल्यूज, ठीक है। यानी कि ये 120 वाला कैलकुलेशन ये कौन से के लिए मिला है, के इक्वल टू 1 के लिए मिला है, तो वो हमको वैल्यू, वो के की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है। ये 48 वाला जो कैलकुलेशन है ये कौन से के की वैल्यू के लिए मिला है, के इक्वल टू 2 के लिए मिला है, ठीक है। और ये 84 वाला कैलकुलेशन कौन से के लिए मिला है, 3 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें साइमल्टेनियसली एस मैट्रिक्स को भी फिल करना है। तो हमने ये दो मैट्रिक्स, मैंने इसकी एंट्रीज की मतलब आपको बता दी। देखिए C12 का मतलब है
C12 को यानी मैट्रिक्स 1 को मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना है 120, मैट्रिक्स 2 को मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट 48 है, और मैट्रिक्स 3 को मैट्रिक्स 4 के साथ मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट है 84। यानी इतने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होंगी अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम दो ही मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसका अगर हम कॉस्ट फाइंड आउट करें, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करें, तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि दो मैट्रिक्स के साथ हम कोई ग्रुपिंग या पैरेंथेसाइजेशन नहीं कर सकते हैं। पैरेंथेसाइजेशन या ग्रुपिंग हम 3 या 3 से ज़्यादा मैट्रिसेस के साथ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशंस मिल सकती है, टोटल कॉस्ट अलग अलग मिल सकती है फॉर अलग अलग ग्रुपिंग। फॉर डिफरेंट पैरेंथेसाइजेशन यू कैन गेट डिफरेंट values of total cost, okay, and from those values we choose the smallest one. So because in case of multiplication of two matrices there is no choice, this is only the total cost of multiplication, so we are using those values only. हमको मिनिमम और कुछ नहीं निकालना। जनरली हम मिनिमम किस में से निकालते हैं, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से मिनिमम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो उसका क्या मिनिमम निकालें, तो वही हमारा मिनिमम टोटल कॉस्ट होगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के यही हमारे मिनिमम टोटल कॉस्ट होंगे। ओके, मैं यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मैट्रिक्स को हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, राइट। एक मैट्रिक्स को बनाने के लिए बहुत सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ते हैं, यानी सिंगल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। स्केलर नंबर्स, स्केलर वैल्यूज यानी जैसे 2 into 3 ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह के स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ते हैं सिंपल नंबर्स के साथ। और जब हम वेक्टर्स को या मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अलग अलग मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या काउंट करते हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए या पूरे मैट्राइसेस के हर एक एलिमेंट के लिए, इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए कितने स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की जरूरत पड़ी, वो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हियर वी आर राइटिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लाइंग 3 मैट्रिक्स लो। अभी हम 3 मैट्रिक्स के साथ देखेंगे। हमने पहले स्टेप में एक मैट्रिक्स को कंसिडर किया, फिर 2 मैट्रिक्स का कॉस्ट निकाला, अभी हम 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए अभी हम कौन सा एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 3, ठीक है। नाउ इसका मतलब वी आर फाइंडिंग आउट C of 1 3। नाउ C of 1 3 का मतलब क्या है, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3, ठीक है, M1 M2 M3, ये 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या मिल सकता है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास, तो हम क्या कर रहे हैं, M1 M2 M3, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप पैरेंथेसाइजेशन ऐसे भी कर सकते हो। तो इससे मिनिमम कॉस्ट मिलेगा या इससे मिनिमम कॉस्ट मिलेगा, वही हम ये कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, देखिए k इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3, यानी k की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम k की वैल्यू 1 कंसिडर करें, k की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं। अगर k की वैल्यू 1 है तो फिर फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, C ऑफ क्या था, C ऑफ I k, C ऑफ I k, सो दिस इज I एंड दिस इज J, रिमेंबर, ठीक है। I k क्या हो जाएगा, 1 1, I is 1, k is 1, प्लस C ऑफ k j, k प्लस 1 j, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, C ऑफ 1 1 हो जाएगा, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और j इज 3, ठीक है, प्लस pi minus 1 will be p0 into pk, k is 1 into pj मतलब p3, ठीक है, p0 p1 p3। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। C ऑफ 1 1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। C ऑफ 2 3 की वैल्यू देखिए 2 3, ऐसे नहीं लेना है आपको, 2 3, C ऑफ 2 3 की वैल्यू कितनी है 48, प्लस p0 p1 p3, p0 p1 p3 इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 4 into 2, तो देखते क्या मिलेगा, 48 प्लस 5 4 20, 22 40, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, तो 48 प्लस 40 इज 88, ओके, सो 88 इज द आंसर। ये तो हमने k इक्वल टू 1 के साथ किया। k की दूसरी वैल्यू क्या है, अगर k का रेंज 1 to 3 है तो k कैन बी 2 ऑल्सो, ओके, सो लेट्स टेक k इज इक्वल टू 2। अगर k इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो फिर कैसे कैलकुलेशन होगा, तो फिर से हम वो फॉर्मूला करते हैं, C ऑफ I k, नाउ k इज 2 दिस टाइम, प्लस C ऑफ k प्लस 1 j, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस I माइनस 1 इज p0 p2 p3, ओके।
सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिला 88 मिला। अभी देखते हैं कितना मिलेगा 1 2। ठीक है 1 2 कितना आंसर है 120 प्लस 3 का आंसर कितना था 0। 3 का रिजल्ट कितना था 0। P0 P2 P3 P0 P2 P3 5 इंटू 6 इंटू 2 P0 P2 P3। ओके सो 120 प्लस 5 टू 10 60 हो जाएगा ये। तो 120 प्लस 60 इज 180। हम सॉल्व करिए 180। तो k इक्वल टू 1 के लिए आपको कॉस्ट कितना मिला 88 और k इज इक्वल टू 2 के लिए आपको कॉस्ट कितना मिला 180। इनमें से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना था, आपको मिनिमम वाला कॉस्ट एक्सट्रैक्ट करना था। तो दो कॉस्ट में से 88 मिनिमम कॉस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे हम 88 को यूज करेंगे, हम मिनिमम कॉस्ट करेंगे। यही होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आप पहले सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करो, उसमें से आपको जिसका रिजल्ट या जिसका आंसर ऑप्टिमल होता है उसको सिलेक्ट कीजिए, तब आप अपना ग्रीडीनेस दिखाइए। लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करने के बाद हम हमारा ग्रीडीनेस दिखाते हैं। ऐसा ग्रीडी स्ट्रैटेजी में नहीं होता, वहाँ पे हम शुरू से ही ग्रीडीनेस दिखाते हैं। अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करते ही नहीं है, हम वही पॉसिबिलिटी को ट्राई करते हैं। शुरू में ही हम ग्रीडी हो जाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी में हमें अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सकता है तो हम वही ट्राई करेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये तो C ऑफ 13 निकल गया। अब हम C ऑफ 24 निकालेंगे। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, अब k की वैल्यूज, k का रेंज क्या है 2 से लेके 4। ठीक है, ये I है, ये J है। ठीक है, तो k कहाँ से कहाँ तक जाता है I लेस देन इक्वल टू k, k लेस देन J। ठीक है, तो 2 से लेके 4 तक जाएगा k, लेकिन 2 से लेके 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से स्ट्रिक्टली लेस है। दैट मीन्स k की वैल्यू 2 या 3 हो सकती है। तो एक एक करके k का वैल्यू लेते हैं। पहले हम k इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा C ऑफ I k। ओके, तो I क्या है 2 2। ठीक है 2 2 प्लस C ऑफ k प्लस 1 यानी कि 3 J प्लस Pi माइनस 1 यानी कि P1 होगा Pk इंटू Pj। ओके, P1 P2 P4। ओके, according to the formula. So let's put up the values. 2 2 क्या होगा C of 2 2 is 0, C of 3 4। ठीक है 3 4 हमने उसको ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इट्स 84। और P1 P2 P4 P1 P2 P4 इट्स 4 इंटू 6 इंटू 7 4 इंटू 6 इंटू 7। So 84 plus 4 into 6 into 7. So this is the cost of multiplication. So let's see कि कितना होता है। It comes out to be 252. So it's 252. Okay, so this is the value. अगर k equal to 2 है तो this is the cost. Now let's try the second formula. Second k की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा I k, I is 2, k is 3 now. Plus k plus 1 will be 4 4 4 plus Pi minus 1 which is P1 into P3 Pk into Pj is 4. Okay, so let's put up the values. 2 3 की वैल्यू कितनी है 48 plus 4 4 is 0, P1 P3 P4 P1 P3 P4 P1 is 4, P3 is 2, P4 is 7. Okay, so let's try to find out the result of this calculation. It comes out to be 104. Comes out to be 104. So देखिए k equal to 2 के लिए 252 मिला है, k equal to 3 के लिए 104 मिला है। तो which one is smaller? 104 is smaller. इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 104, the smaller value. This is giving you the optimal cost. ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं हम। 24 C of 24 का मतलब क्या है, हम कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट निकाल रहे हैं। हम M2 को M3 इंटू M4 2 से 4 2 4 है ना, 2 से 4 2 3 4 इनको मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट देते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का एसोसिएशन या पैरेंथेसाइजेशन पॉसिबल है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या तो M2 इंटू M3 इंटू M4 ऐसा पैरेंथेसाइजेशन करो। ठीक है, तो एक में हम क्या करते हैं, हम 2 के बाद ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, k इक्वल टू 2 मीन्स 2 के बाद आप ब्रैकेट करो, ग्रुपिंग इस तरह से करो। और k इक्वल टू 3 मीन्स आप 3 के बाद ब्रैकेट डालो, इस तरह से ग्रुपिंग करो। तो हमको क्या मिल रहा है कि इस तरह से ग्रुपिंग करने पे हमें टोटल कॉस्ट कम मिल रहा है। ठीक है, कंपेरेटिवली कम मिल रहा है। तो 104 कौन से k के लिए हमें 104 की वैल्यू मिली या लीस्ट वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 104 जो है वो कौन से k के लिए मिली, k इक्वल टू 3 के लिए मिली। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे k इक्वल टू 3 मिलेंगे। यहाँ पर भी देखते हैं हमको मिनिमम कॉस्ट क्या मिला था 88, वो कौन से k की वैल्यू के लिए मिला था k इक्वल टू 1। तो
यहाँ पे हम 1 देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 3 एंट्री किया तो यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली 1 3 एंटर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम साइमल्टेनियसली के मैट्रिसेस भी करेंगे। तो के मैट्रिक्स क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा है, देखिए व्हाट इज ये क्या है 1 3, यानी हम 1 2 और 3 वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू हमको 1 मिली है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 के बाद ब्रैकेट डालो, ठीक है, सी दिस वैल्यू शोज कि हमें कौन से मैट्रिक्स के बाद ब्रैकेट पुट करना है, ठीक है। आफ्टर विच मैट्रिक्स वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट। 1 हियर इंडिकेट्स व्हाट कि हमें 1 के बाद ब्रैकेट डालना है, ठीक है। ग्रुपिंग इस तरह से करना है। अगर 1 के बाद ब्रैकेट डालना है तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको m2 इंटू m3 को ग्रुप करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 4 मीन्स आपको m2 m3 m4 इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपको k की वैल्यू क्या मिली, k मैट्रिक्स में वैल्यू क्या मिली 3। दैट मीन्स आपको 3 के बाद ब्रैकेट पुट अप करना है, यानी ये वाला चूज करना है, ठीक है। तो 3 के बाद अगर ब्रैकेट डालते हो तो ग्रुपिंग कैसी हो रही है m2 और m3 का, और फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो m4 से मल्टीप्लाई होगा, और इससे आपको मिनिमम कॉस्ट ऑफ 10 मिल रहा है। फॉर k इक्वल टू 3 यू आर गेटिंग मिनिमम कॉस्ट, ओके। Now we will calculate the final entry of this. That means C of 1 4 हमें कैलकुलेट करना है। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी k की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 4 तक जा रही है। दैट मीन्स k की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो k की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तीनों वैल्यूज के लिए k की 3 अलग वैल्यूज के लिए 3 अलग अलग रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। उसमें से हमें जो मिनिमम वाला है उसको पिक करना है। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम k की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा। सी ऑफ 1 4 का मतलब क्या है, सी ऑफ 1 4 वाली एंट्री का मतलब क्या है कि 1 से लेके 4 तक, यानी m1 m2 m3 m4, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक चारों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। देखो शुरू में हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, एक ही मैट्रिक्स को कंसिडर किया, तो एक ही मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन का तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। फिर हमने 2 मैट्रिक्स कंसिडर किए, 1 2 2 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड मैट्रिक्स को थर्ड मैट्रिक्स से, फिर थर्ड मैट्रिक्स को फोर्थ मैट्रिक्स से, फिर उसका कॉस्ट निकाला। फिर हमने 3 मैट्रिक्स को कंसिडर किया, ठीक है, 1 2 3 एंड 2 3 4, ठीक है। अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 करना है तो मिनिमम कॉस्ट ये मिला था, 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है तो ये मिनिमम कॉस्ट मिले। अब फाइनली हम चारों मैट्रिक्सेस को एक साथ कंसिडर करेंगे। अब 4 मैट्रिक्स के साथ अलग अलग ग्रुपिंग पॉसिबल है, 3 अलग अलग ग्रुपिंग्स पॉसिबल होती है, इसलिए k की 3 अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। तो क्या वो वैल्यूज के लिए कौन सी ग्रुपिंग सही रहेगी जो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा, या यानी कि मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस देगा, वो कैलकुलेट करते हैं। तो k की पहली वैल्यू क्या हो सकती है, k की पहली वैल्यू 1 हो सकती है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, C ऑफ I K, दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K, ठीक है। ये हमारा K है। तो I J क्या, पहले क्या करना है, C ऑफ I K यानी 1 1 प्लस K प्लस 1 J, K प्लस 1 J प्लस Pi माइनस 1 यानी कि P0 डॉट Pk यानी कि 1 डॉट Pj। तो सब्स्टिट्यूट कर देते वैल्यूज, 1 1 0 है, 2 4 क्या है, 2 4, ठीक है, 1 0 4 है, P0 P1 P4, P0 P1 P4, तो वैल्यूज डाल देते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 7, तो कितना आएगा, 5 से 20, 27 जा 140, सो वी गेट 244, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 244, ठीक है। ये एक हो गया, इक्वल टू 1 के लिए ये कॉस्ट मिला है। दूसरा पॉसिबल वैल्यू क्या है k का, k इक्वल टू 2, ठीक है। इस रेंज में k इक्वल टू 2 भी हो सकता है, तो फिर देखते हैं उसके हिसाब से क्या होगा। I k यानी 1 2 प्लस k प्लस 1 j, ठीक है, k प्लस 1 इज 3 4 प्लस Pi माइनस 1 Pk Pj, ठीक है। अब 1 2 क्या है देखते हैं, 1 2 इट्स 120, 3 4 क्या है, P4 is 84 plus P0 is 5, P2 is 6 and P4 is 7. So 120 plus 84 plus 5 into 6 into 7, it comes out to be 337. तो ये हमारा दूसरा कॉस्ट है, ठीक है। अब तीसरी k की वैल्यू क्या है, तीसरी k की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। तो 3 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। C of I k, I is 1, k is 3 plus k plus 1 j, k plus 1 j, Pi minus 1 Pk Pj,
वैल्यूज पुट अप करते हैं. C of 1 3 is 88 plus 4 4 is 0. P0 P3 P4 P0 P3 P4. So it comes out to be, let's see, comes out to be 158. 158. Okay. So out of the three values, for different values of k, we have got three different values, and we can see that 158 is the least. Okay. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 158. इसमें से तीनों वैल्यूज में से हमको क्या करना था, मिनिमम वाला पिकअप करना था, विच इज 158. अब ये 158 वैल्यू कौन से के लिए आई है, ये k इक्वल टू 3 के लिए आई है, तो हम यहाँ पे 3 करें. ओके. तो इस तरह से ये दोनों कॉस मैट्रिक्स और एस मैट्रिक्स पहले आपको कैलकुलेट करके रखना होगा. ठीक है. सो वंस यू आर कैलकुलेटिंग दीज मैट्रिसेस, ये जो लास्ट वाली वैल्यू हमको मिली है, दिस इज योर ऑप्टिमल सोल्यूशन. दिस इज योर ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट. मिनिमम, ऑप्टिमल या नहीं मिनिमम. ठीक है. ऑप्टिमल या बेस्ट कब होगा, जब वो मिनिमम होगा इन दिस केस. तो मिनिमम 158 मल्टीप्लीकेशंस में आप चारों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे चार मैट्रिक्स क्या थे, M1 M2 M3 M4. ठीक है. इस तरह से ये चार मैट्रिसेस थे. तो देखिए यहाँ पे 158 वाला कॉस्ट कब मिला, जब k की वैल्यू 3 थी. इसका मतलब क्या है, 3, ये जो मैंने आपको बताया k की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, आपको ब्रैकेट कहाँ देना है, 3 के बाद. देखिए हमारा मेन एम था, टोटल कॉस्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि चारों को मल्टीप्लाई करने का मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या है, वो तो 158 है. लेकिन वो कौन सी ग्रुपिंग की वजह से मिला है, वो 158 वाला टोटल कॉस्ट किस तरह से पैरेंथेसाइजेशन करने पे या किस तरह की ग्रुपिंग करने पे, क्योंकि चार मैट्रिक्स के साथ बहुत सारे ग्रुपिंग्स पॉसिबल है, तो किस तरह की ग्रुपिंग की वजह से ये मिला है वो हमें अभी फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो दोनों चीज़ें फाइंड आउट करना ज़रूरी है. ओके. सो एज में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू द ऑप्टिमल कॉस्ट, दे कैन ऑल्सो आस्क यू द ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन. Right? So here we have 3, that means 158 cost you are getting because of 3. So put a bracket after 3. So if you are putting a bracket after 3 means आपको इस तरह से सेपरेशन पहले करना है. ठीक है. शुरू में देना है, 3 के बाद देना है. ठीक है. यहाँ पे बिगनिंग में कहाँ देना होगा, ऑब्वियसली शुरू में. बीच में कब कहाँ देना वो बाद में पता चलेगा. ठीक है. तो ये ग्रुपिंग हो गई. अब राइट जो ग्रुप है उसमें तो एक सिंगल मैट्रिक्स है, इसमें और ग्रुपिंग नहीं हो सकती है. लेकिन ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसमें भी 3 है, तो इसमें भी और ग्रुपिंग हो सकती है. राइट. तो कैसे पता करें, देखिए ये क्या है 1, ये क्या है 3. तो एस मैट्रिक्स में या के मैट्रिक्स में 1 3 वाली एंट्री देखो, 1 3 वाली एंट्री देखो. ठीक है. ये क्या है, तो पहले हमने ये वाली एंट्री देखी क्योंकि हमारा ये ऑप्टिमल कॉस्ट है. हमने ये एंट्री, ये 3 हमें बता रहा है कि एंट्री के बाद ब्रैकेट डालना है. अभी हम 1 3 देख रहे हैं क्योंकि ये जो ब्रैकेट है लेफ्ट वाला ब्रैकेट, इसमें फर्स्ट क्या है 1 है, लास्ट क्या है 3 है. तो M1 और M2 और M3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट किसके बाद डालना है, 1 के बाद डालना है. यानी कि M1 को अलग रखना. ठीक है. M1 को अलग रखना है, दैट मीन्स M2 और M3 आपको इस तरह से करना है. सो ये है करेक्ट पैरेंथेसाइजेशन. ठीक है. दिस इज द करेक्ट पैरेंथेसाइजेशन. आपको क्या करना है, M1 को पहले मल्टीप्लाई करना है M3 से. सी वी कैन पुट इट लाइक दिस आल्सो. पहले आपको M2 इंटू M3 करना है. इनरमोस्ट ब्रैकेट हम सबसे पहले करते हैं, तो पहले दिस इज फर्स्ट. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करना है, फिर आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस इज सेकेंड, और फिर आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है. तो 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है. लेकिन ग्रुपिंग कैसे करें, हमने ब्रैकेट्स कैसे डिसाइड किया या पैरेंथेसाइजेशन कैसे डिसाइड किया, ये मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता चला कि M2 M3 को पहले ग्रुप करना है. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो M1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें लास्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल डू, देन दिस इज द सेकंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दैट विल कैरी ऑन, and this is the last vector multiplication that we will carry on.